Hello everyone. This is day number 18 of your 30 days to crack CSAT program. Today we would be targeting series based questions. ये questions these are basically part of reasoning you may call it. अब देखते हैं एक एक करके कि कैसे आपको इन questions को tackle करना है. But before that, this is where we are. Day number 18. We need to cover this in the upcoming days of April itself. ठीक है? चलो. By now, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे whatever we have discussed so far you have any doubts, please post those doubts on this video's comment section. Now, this is something that I have been advising you to follow up with the detailed lectures that you have been doing. Try to cover the PYQ year wise. इस playlist पे जाना, you will get all the PYQ year wise. You start covering one by one. You'll have so much confidence when you go into the actual paper. Plus, this is our prediction for the last 2 years. 37 questions, 35 questions out of the respective QNLR based questions. And these are the detailed proof. आपको एक बारी check करना है. You can have a view there. Also, this is the link to our Telegram channel wherein we post course related information. So if you don't want to miss out on anything, you can join this. So I hope you must have joined this Telegram group. Now, for 2027 appearing students, we have the foundation course. The enrollment has already started. So this is not for 2026. Crash courses, obviously, we have stopped the enrollment. Right now, you can enroll into our test series planner, which consists of 10 full length tests. And then these are specifically exam oriented, plus the PYQ based questions are there. आपको इस पे डिटेल में जानना है, you want to get any information, please connect on this number. All right. Now, these are the questions that I'm talking about. एक बार ये बस आप इस पे नजर डालो, क्या सीक्वेंस बन के आ रहा है? AB, ABC, ABCD and then ABCDE. So every time it actually increases. अब आपको पता है कि नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा ABCDEF. Then next would be ABCDEF and a G. So इस तरीके से they'll keep on increasing and you need to find the value at the 100th place. जैसे which letter or in this series appears at the 7th place? तो आप बोलोगे at the 7th place we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7th we have A. But this is easy to calculate. आप इसको लिख के कैलकुलेट कर सकते हो. 7 एक छोटा नंबर है, 10 एक छोटा नंबर है, 15 is even a smaller number to comprehend. But what about 100, 120, 91, 97, 200? तो इसके लिए we need to go by the process of solving such problems. I hope you understood. Question difficult नहीं है, but if they put you in a difficult spot with a higher value, so you need to follow a set of operations to get to this result. ठीक है, this is a question from the year 2022. We'll exactly see how this can be done. Don't worry, बिल्कुल परेशान मत हो ना. उससे पहले देखो ये भी एक सीक्वेंस है, A, B, B, then C, C, C 3 times, D, 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 D 4 times, E, 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 E 5 times. ऐसा कुछ है गिवन. ठीक है, अब एक बार समझते हैं. मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज 1 प्लस 2 प्लस 3. व्हाट इज 1 प्लस 2 प्लस 3? तो आप बोलोगे दिस इज 6. ओके, कैन आई से 1 प्लस 2 प्लस 3 ऑल्सो इंडिकेट्स 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, या कोई भी चीज को आप ऐड कर रहे हो बेसिकली. जैसे यहां पे आप बोल रहे हो 1 एलिमेंट, देन यू हैव 2 एलिमेंट्स, 2 ऑफ बी, 3 ऑफ सीज, 4 ऑफ डीज. एंड इफ आई वांट टू आस्क यू कि what will be the last value here, तो आप बोलोगे let's add 1 plus 2 plus 3 plus 4. If you keep on adding this, you will be getting the result of this place or the position of this. जैसे this is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. And what is 1 plus 2 plus 3 plus 4? That is also 10. Plus 5 is basically 15. So this value will be at the 15th place. अब शायद आपको कनेक्ट समझ में आ रहा होगा. सो हियर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ऐड नेचुरल नंबर्स. अब जैसे मेरे पास छोटे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो मैं नॉर्मली लिख के उसे ऐड कर सकता हूँ. बट इफ आई वांट टू गो अप टू अ लार्जर एक्सटेंट, तो आई शुड बी यूजिंग अ फॉर्मूला. इसलिए एक फॉर्मूला आता है विच इज बेसिकली द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स
Why do we need this formula? Because we cannot calculate to a larger extent with this method. So we need to go to a formula. The formula is n into n plus 1 by 2. Let's look at the explanation for this. N क्या indicate कर रहा है? The first three natural numbers. What are the first three natural numbers? अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1, 2 एंड 3. जब मैं 2 बोल रहा हूं तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2 एलिमेंट्स. जब मैं 3 बोलूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 एलिमेंट्स. सो 1, 2, 3 बेसिकली इंडिकेट्स 3 into 4 by 2, and this will give me 6 elements in total. So whenever you add the first, the second and the third in total, these many elements A, B, B, C, C, C can also be written as A plus B plus C plus C plus C plus C. This is equal to 6 elements. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं? सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. क्या ये आइडिया क्लियर है? अब ये बड़े नंबर पे जाएगा. लेट्स से मैं यहां पे पूछूं आपसे एट द 100th प्लेस, सेम सीक्वेंस एट द 100th प्लेस, व्हाट विल यू डू? तो आप हिट एंड ट्रायल से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इसके क्लोजेस्ट जाने की कोशिश करोगे. बट यूल ऑल्सो हैव टू कीप इन टू माइंड कि हियर वी आर यूजिंग अल्फाबेट्स. डू दे हैव एनी सिग्निफिकेंस हियर? यस. A, B, C, D, E, F, G, H, and then you have Y, Z, X, Y, Z. A is at the first spot, B is at the second, C is at the third, D is at the fourth, 5, 6, 7, 8. अब जरा ध्यान से समझना. C is at the third spot. क्लियर है? तो C देखो कितनी बारी यहाँ पे रिपीट हो रहा है. दिस इज द सीक्वेंस. C is repeating 3 times. Okay, D is at the fourth spot, so D is occurring 4 times. E is at the fifth spot, alphabetical order, and E is here 5 times. F is at the sixth spot and F is appearing 6 times. तो ये सारे कुछ sequences है. This is something known as warm up that we are doing. तो यहाँ पे परेशान बिल्कुल मत होना. Whatever I'm asking you to calculate, I'm asking you to take down, you just go through it. That's it. चलो. Sum of first n natural number is given by n into n plus 1 by 2. कैसे यूज करना था? जैसे अगर मुझे ऐड करना है 1, 2, 3, 4, 5. So I'm writing the first 5 natural numbers. So n here becomes 5 and the formula is 5 into 6 by 2, which will give me 15. So if I add 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, I'd be getting the result as 15. ये clear हो गया. अब आते हैं इस पे. देखो इसके बेसिस पे you also have the formula of first and even numbers, odd numbers. इस पर्टिकुलर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए उन सब का रिक्वायरमेंट नहीं है. So first we only focus on this formula because this is very important for us. This is also common for other CSAT questions. ये particular formula, तो इसको आप pointer करके लिख लो. This is something that you should memorize and you should have a good hold on. ये formula आप skip नहीं कर सकते हो. That's the only reason I'm asking you to take this down. ठीक है. Now let's look at our sequence. A, B, B, C, 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 D, 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 D. And you know it will be E 5 times, F 6 times, G 7 times, H 8 times, ऐसा ही कुछ होगा. मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यार मैंने randomly ऐसे लिखा कि I'm taking n as 4. When I take n as 4, तो मैं अगर number of terms निकालूँ, number of terms, NOT, number of terms, तो क्या होगा 4 into 5 by 2, which will give me 10 terms. अच्छा ये 10 terms क्या क्या होंगे? So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is the idea that you get? The idea that you get is basically when we keep n as 4, so I'm talking about the digit D, or the letter D, and D is completed. A, B, B, C, 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 D, 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 D. D has been exhausted, and what is the final value at which it is exhausted? 10th place, or we have covered up to 10 terms. Similarly, if we take n as 3, so I mean the letter that we are considering is C. What is the number of terms? जल्दी बोलना number of terms. तो आप बोलोगे 3 into 4 by 2. This will give me 6 terms. What does 6 terms indicate? That I have calculated A, B, B, C, C, C and I have exhausted C. I have exhausted C. So 6th place. With this, I completely get the idea कि 6th place पे क्या होगा? 6th place पे होगा C and 7th place will have D, the next element to this.
C has been exhausted here. The next element has to be D. Also, if I take n to be 5 और मैं एक कैलकुलेशन करूं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे द नंबर ऑफ टर्म्स हियर वुड बी 5 into 6 upon 2. This will give me 15 terms. और 5th प्लेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलोगे द लेटर हियर इज ई. इट मीन्स 11, 12, 13, 14, 15. I have exhausted E. E. ऐसा ही होगा ना. नेक्स्ट आपको पता है F आएगा, और F 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आएगा. एंड विद दिस 15 टर्म्स आई गेट द आइडिया दैट द 15th टर्म is actually the exhausted one. E has been exhausted. Clear है. 16th term would be the next element which is F. 17th term would be the next element which is again F. और ये F कितनी बारी आएगा, तो F आएगा 6 times. ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना. सो 18, 19, 20 and 21. क्लियर है. तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. अब अगर ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा है, आइडिया क्लियर है, देन वी कैन लुक एट फ्यू थिंग्स. और वो क्या है देखो. जैसे मेरे पास सीक्वेंस गिवन है ए बी बी सी 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 डी 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 ई ई ई ई 5 बार हो गया. कंटिन्यू. व्हाट इज द डिजिट एट द 100th प्लेस, और व्हाट इज द लेटर एट द 100th प्लेस. ठीक है, कोई बात नहीं. व्हाट आई डू, आई ट्राई टू गेट क्लोज टू 100 के आसपास जाने की कोशिश करूंगा. तो मैं रैंडमली वैल्यूज ले रहा हूं. नाउ दिस इज समथिंग नोन एज हिट एंड ट्रायल. तो मैंने 10 अज्यूम करा. अब 10 पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, द नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी 10 into 11 by 2, n into n plus 1 by 2, 10 into 11 by 2. ओके, कैंसिल करो. ये 55 टर्म्स आ गए. अब ये 55 टर्म्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको, आप इससे क्या समझ रहे हो, ये बताओ मुझे. 55 टर्म्स आ गए, इसका क्या मतलब है. यू हैव टेकन n as 10. n10 का ये मतलब है दैट लेटर एट द 10th स्पॉट, आई नो द लेटर एट द 10th स्पॉट इज j. इसका मतलब है एट द 55th स्पॉट j एग्जॉस्ट हो गया होगा. i j k. अब 56 स्पॉट पे क्या आएगा, k. 57th पे क्या आएगा, k. इस तरीके से आगे बढ़ेगा. k कितनी बार आएगा, 11 टाइम्स आएगा. और अगर 55 पे मैं 11 ऐड कर दूं तो इट वुड बी 66. सो 66 प्लेस पे क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा, k. 67 पे क्या आएगा, k के बाद l. और l कितनी बारी आएगा, इट विल अकर 12 टाइम्स. इट विल अकर 11 टाइम्स. एंड j हैज ऑलरेडी अकर्ड 10 टाइम्स. दिस इज द लास्ट वैल्यू at which j would occur. ये बात तो समझ में आ रही है आप सबको, क्लियर है क्या. बट आर टास्क इज गेटिंग क्लोज टू 100. तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करूंगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं. आप बस यहाँ पे ये करोगे कि आपका वैल्यू आया 55. नो, यू वांट टू गेट क्लोज टू 100. सो यू विल कंसिडर अ नंबर विच इज ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन 10. तो लेट्स डू दिस. इसके बेसिस पे आंसर नहीं आ रहा है, सो वी स्टार्ट विथ अनदर अजम्पशन. Another assumption क्या है, let's consider n to be a number which is close, maybe more than 10. So अगर मैं 15 ले लूं, या चलो मैं 13 ले लेता हूं. 13 पे क्या आएगा, number of terms, tell me quickly. 13 into 14 by 2, this is 91 terms. Okay, 13 consider करने का क्या मतलब है, the letter here is at the 13th place and that letter is m. तो 91st term is actually m, और m यहां पे एग्जॉस्ट हो गया है. m के बाद क्या आता है, n आता है. n आएगा. n कितनी बारी आएगा, n आएगा यहां पे 14 टाइम्स. और अगर n यहां पे 14 टाइम्स आएगा, आपको 92, 93, 94 करते हुए कहां तक जाना है, 100 स्पॉट पे. तो 100 प्लेस पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 9 टर्म्स. 14 टाइम्स तो ये आ ही रहा है. 9th प्लेस पे आपको n ही आएगा. So n is your correct answer. I hope you understood this. मैं आपसे पूछूं what is the value at the 90th place. 91st पे m है तो 90 पे भी m आएगा. और ये कितनी बारी पीछे रिपीट हो रहा होगा, तो ये 13 टाइम्स आएगा. इसके बाद ये 14 टाइम्स आएगा. 14 का मतलब है the last value for this would be 105.
105 पे n एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा 106 से 106 would be O 107 would again be O and O would be repeated how many times 15 times so that will give me O occurring up to 120 ये क्लियर है दिस इज द होल आइडिया रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब अगर आपको एक कमांड बन गया है आई एम कीपिंग द सेम सीक्वेंस ताकि आप इसको रिपीटेडली फॉलो कर पाओ अच्छे से एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस तो आप बड़े आराम से कुछ भी कर लोगे जैसे मान लो मैं बोलूँ 107th प्लेस कौन सा लेटर आएगा तो मैं क्या करूंगा आई विल स्टार्ट विथ टेकिंग एन अभी मैंने कुछ कुछ वैल्यूज किए थे तो मुझे पता है 13 14 में ले लेता हूँ यहाँ पे सो इफ आई कंसिडर दिस टू बी 14 व्हाट डू यू थिंक वुड बी द फिट हियर if I consider this to be 14 the number of terms would be 14 into 15 by 2 15 into 7 कितने होता है 15 into 7 is 105 so 105 terms are there in total so ये क्या इंडिकेट कर रहा है n being 14 the letter at the 14 spot is capital N मतलब अगर मैं A B B C C C going up to n तक कवर करूं n तो यहां पे मेरे पास टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे 105 टर्म्स आई हैव कंप्लीटेड नाउ आई नो n हैज बीन एग्जॉस्टेड एट 105th प्लेस 105th प्लेस पे क्या आएगा n आएगा ये क्लियर है नाउ 106 107 108 नेक्स्ट टर्म्स क्या आने वाले हैं n के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में m n o यहाँ पे O आएगा यहाँ पे भी O आएगा यहाँ पे भी O आएगा और ये O कितनी बार आएगा सो दिस O वुड अकर हाउ मेनी टाइम्स दिस O वुड अकर 15 टाइम्स दिस O वुड अकर 15 टाइम्स एंड दिस विल गो अप टू 120 क्लियर है आपसे क्या पूछा है 107 पे भी O आएगा दैट इज योर आंसर तो आई होप विद दिस बेसिक सिनारियो मतलब अगर आपने इनिशियली 10-15 मिनट ध्यान से सुन लिए तो इस क्वेश्चन में कभी आपसे गलती हो ही नहीं सकती है आप ऐसे क्वेश्चंस को ऑल्दो इट में सीम लाइक यार मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एग्जाम में क्या बिल्कुल नहीं लगेगा दिस इज समथिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कीपिंग इनटू कंसिडरेशन दैट यू नो नथिंग with these type of questions but ऐसा तो नहीं है you already know certain things ये जो मैं आपको sum of first n natural numbers बता रहा हूँ this is not like you have not read it somewhere you already know the working of it but I consider कि you don't know so I start from the basics clear है इसलिए शायद यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं ओवर एक्सप्लेन कर सकता हूँ या फिर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ but these questions can be done in 1 minute trust me on this और ये डेवलप आप कर लोगे 100% आपसे हो जाएगा डोंट वरी लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन सो मे बी इफ आई राइट ए देन ए बी देन ए बी सी देन ए बी सी डी ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है देखो ए बी सी डी 1 then 2 terms then 3 terms then 4 terms क्लियर है नाउ इफ वी कंसिडर n टू बी 3 सो ये क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स NOT क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 3 into 4 by 2 which will give me 6 terms 6 terms का क्या मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 term is C तो ये थर्ड टर्म द लेटर इज C और वो 6 टर्म मतलब 6th प्लेस पे लेटर C एग्जॉस्ट हो जा रहा है एग्जॉस्ट होके अब वापस से रिपीटेशन कहां से स्टार्ट होता है इनिशियल लेटर से ए बी सी डी अब ए कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा ए बी सी डी 4 टाइम्स अगेन इट वुड बी ए बी सी डी ई 5 टाइम्स अगेन द लेटर ई हैज एग्जॉस्टेड हियर इट वुड स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ 6 टाइम्स इस तरीके से भी सीक्वेंस अगर चलाओगे तो क्या क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे आपको पता है सी यहां पे एग्जॉस्ट हुआ है now next 7th term has to be A then B then C and 7 8 9 10th has to be D अब D यहां पे एग्जॉस्ट हो गया नेक्स्ट क्या आएगा 11 12 13 A B C D E 14 and 15 E यहां पे एग्जॉस्ट हो गया नेक्स्ट क्या आएगा वापस से ABCD ABCD A से वापस से स्टार्ट हो रहा है वापस से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को
कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो क्या पूछा है, विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस दैट वी हैव। सेम सीक्वेंस ए बी ABC ABCD ABCDE, 100 पोजीशन पे जाना है। तो अभी आपने हिट एंड ट्रायल किया एंड यू हैव अंडरस्टूड कि अगर मैं 13 के आसपास का वैल्यू रखूं तो मैं 100 के आसपास जरूर चले जाऊंगा, 13 14। तो चलो मैं इनको 13 अज्यूम कर रहा हूं और इस फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे पास। 13 इंटू 14 बाई 2, दिस विल गिव मी 91 टर्म्स। अब ये 91 टर्म्स का क्या इंडिकेशन होगा, यहां पे जो लेटर हमने यूज करा है दैट इज एम। क्यों एम बोल रहा हूं, बिकॉज एट द 13th प्लेस द लेटर एम अकर्स। 91 टर्म्स हो गए मेरे। 91st टर्म जो है लास्ट वाला, ये क्या होगा, द लेटर एम। एंड आई नो इट हैज एग्जॉस्टेड हियर, सो द काउंटिंग वुड अगेन स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी डी, इस तरीके से चलेगा। एंड सिंस आई हैव एग्जॉस्टेड टिल एम, तो 100% मैं ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक तो जाऊंगा ही, इसके बाद मैं एन भी जाऊंगा और एन को यहां पे मुझे एग्जॉस्ट कर देना पड़ेगा। दैट्स द आइडिया। नाउ वी नीड टू गो टू 100 स्पॉट। सो 92 93 94 95 96 97 98 99 100। 100 पे क्या आ रहा है, द लेटर आई। इसको देखने का और स्मार्ट तरीका क्या है, यू नो एट द 91st स्पॉट वी हैव एम। 91 plus 9 is basically 100. So this 9 means the letter at the 9th place starting from A, B, C, D, E, F, G, H and I. I is at the 9th spot. So starting from A, B, C, D, which letter occurs at the 9th spot? The letter I. तो यहाँ पे जैसे आपको 91st पे M मिलेगा and you know it has exhausted, 92 is going to be an A, so you simply calculate 91 पे क्या ऐड करोगे कि 100 जाएगा plus 9, so 9 spot पे आएगा I and that is how you can mark it and tell me honestly, क्या ये 1 मिनट में नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है with a little bit of practice and being familiar with such type of questions। अब ऐसा तो नहीं आप एक क्वेश्चन बनाओगे और डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे, आप इस क्वेश्चन को बनाओ, इसको रिपीट करो, इसके कॉन्सेप्ट क्या है खुद से भी तो ट्राई करो। एंड आई अज्यूम व्हाइल यू आर टेकिंग द लेक्चर यू आर एक्चुअली कैरिंग अ रफ नोटबुक एंड डूइंग इट ऑन योर ओन। इन चीजों से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ बैठ के इसको देखोगे देयर इज नो सेंस। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। और एक बारी सीक्वेंस पे नजर डालो, आप देखो पहले फिगर आउट करने की कोशिश करो क्या ये कोई सीक्वेंस है। जैसे देखो मुझे दिख रहा है 1 1 फिर 2 फिर 1 3 2 फिर 1 4 3 2, ऐसा कुछ कुछ दिख रहा है। सो कैन आई से दिस इज बेसिकली 1 2 3 1 2 3 4 2 3। क्लियर है। यहाँ पे फिर क्या आ रहा है 1 2 1 और फिर 1 एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। नाउ इफ आई स्टार्ट और इफ आई टेक दिस 1 फ्रॉम हियर एंड आई प्लेस इट समवेयर हियर, सो अब बताओ कितने टर्म्स हो जाएंगे। So I'll say this is 1, then 2 1, then 3 2 1. So 1 term, 2 terms, 3 terms, 1 terms, 2 terms, 3 terms. So basically क्या हो रहा है, अगर मैं 3 देख रहा हूं तो मैं basically कितने terms पे जा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। इस तरीके से अगर मुझे 28 पे जाना है तो 28 के लिए क्या हो सकता है, इट कुड बी क्लोज टू मे बी, देखो 5 तक तो मैं आ चुका हूं, 6 होगा और एक 7 होगा। 7 पे आते हैं, 7 into 8 by 2, 7 4 are 28 terms। ग्रेट। 28 टर्म्स का क्या मतलब है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे सीक्वेंस को, सो दिस इज बेसिकली गोइंग अप टू 28 टर्म्स। हाँ या ना, क्लियर है ये सीक्वेंस कैसे काम कर रहा है। आपके पास एक एक्स्ट्रा 1 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, दिस 1 हियर इज बेसिकली एक्स्ट्रा। तो आप इसको ऐसे काउंट करो कि 2 1 का सम क्या आएगा 3, 3 2 1 का सम क्या आएगा 6, इस पे 4 ऐड कर दोगे तो सम क्या आएगा 10, इस पे 5 ऐड कर दोगे तो सम क्या आएगा 15, इस पे 6 ऐड कर दोगे तो सम क्या आएगा 21। कुछ ऐसा ही काम करेगा ये, हाँ या ना। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस को आगे लेके जाओ और कैलकुलेट करके बताओ
कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। अगर इस पे डाउट आ रहा है, इसका डिटेल्ड सोल्यूशन मेरे चैनल पे भी गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो, बट आई फील कि आप इसको खुद से भी अब कैलकुलेट कर सकते हो। टेल मी आउट ऑफ 83 और 84 विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इफ यू कीप ऑन एडिंग तो आपको उन दोनों में से कुछ आएगा। आपको अब सोच के बताना है कि इन दोनों में से क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई इसका क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, one page, this is a question from 2020. One page is torn from a booklet whose pages are being numbered in the usual manner starting from the first page as 1. जैसे पहला पेज है तो एक तरफ 1 आएगा, दूसरे साइड पे क्या आएगा, 2 आएगा। दिस इज द फर्स्ट पेज इटसेल्फ, मतलब पूरे पेज की बात कर रहा हूँ, द फ्रंट एंड द बैक, फर्स्ट सेकेंड। तो अगर आप एक पूरा पेज, ये एक साथ कनेक्टेड है ना, ये पेज इस कुछ ऐसा दिखेगा। इस पेज को अगर मैं हटा दूं तो 1 और 2 ये दोनों वैल्यूज हट जाएंगे। फिर एक वापस से पेज लो 3 एंड हियर इट इज 4. सो इफ यू टीयर दिस पेज, द नंबर 3 एंड द नंबर 4 गोज आउट. ओके, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आगे ऐसा कुछ डेटा आ रहा है। द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195. द टोन पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? वन पेज इज टोन apart from a booklet whose pages are numbered usually in this manner. और जैसे आपने वो एक पेज हटाया है तो यू नो 2 consecutive numbers are being eliminated and the sum total of the remaining pages is 195. The tone page contains which of the following numbers? ये आपको पता लगाना है। The tone page consists of which of the following numbers? Okay, I need to get close to 195. तो मैं एक बारी सीक्वेंसिंग देखूंगा कि मैं कैसे इसके पास में जा सकता हूं। अगर मैं 10 अज्यूम करता हूं तो मुझे पता है इट इज 10 into 11 by 2 which will give me 55. मैं बहुत पीछे हूं, तो लेट्स इंक्रीज दिस नंबर टू 20. ये बनेगा 20 into 21 by 2, ये आ गया 210 टर्म्स। तो अगर मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके ऐड करना स्टार्ट करा होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐड करते करते अगर मैं 20 तक लिखता तो इसका सम टोटल आता 210। इसमें से मैंने कोई एक पेज एलिमिनेट कर दिया है और अब सम टोटल आ रहा है 195. हाउ मच इज द गैप बिटवीन दीज टू? द गैप बिटवीन 210 and 195 is basically 15. 15 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो क्या वो 5 + 6 हो सकता है? नो. क्या 7 + 8 15 हो सकता है? यस. सो दिस इज आवर आंसर. इसका ये मतलब है कि ये जो पेज था 7 और 8 वाला, ये पेज मैंने यहां से फाड़ दिया. तो एज सून एज आई रिमूव दिस पेज, सो आई ऑल्सो टेक आउट द वैल्यू 7 and 8 फ्रॉम हियर. 7 और 8 जैसे ही मैंने एलिमिनेट करा तो 210 जो टोटल आना चाहिए था वो अब सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा? 195. एंड दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. आपने पूरे बुकलेट में से एक पन्ना फाड़ लिया और उसके वजह से द टोटल इज 195. व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू फॉर द टोन पेज? द वैल्यू इज 7 and 8. द टोटल इज 15. I hope you're clear है. So these are again question based on the application of n into n plus 1 by 2. ये आपके अगर ध्यान में नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी. क्लियर है? चलो मूविंग ऑन. इस क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द मिडिल? देखो ये सारे मैं आपको वेराइटीज करवा रहा हूं. व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस A B B C C C D D D D and then you have E E E, it goes up to Z Z Z Z Z. कितनी बारी आएगा? 26 टाइम्स आएगा. D कितनी बारी आएगा? 4 टाइम्स आएगा. C कितनी बारी आएगा? 3 टाइम्स आएगा. B कितनी बारी आएगा? 2 टाइम्स आएगा. A कितनी बारी आएगा? 1 टाइम आएगा. ये तो आपको क्लियर है. अब अगर मैं पूछूं यार नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे आप 26 तक तो जा रहे हो, तो 26 into 27 by 2 कितने हो जाएंगे बताओ? सो आप बोलोगे यार दिस इज नथिंग बट 27 into 13. दिस इज 351 टर्म्स. क्लियर है क्या? 351 टोटल टर्म्स है. अब अपने को क्या करना है, एक पहले बेसिक एग्जांपल से समझते हैं. अगर देखो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहे हैं एंड आई वांट टू फिगर आउट द मिडिल टर्म. जैसे इफ आई वांट टू राइट कि 5 टर्म्स हैं
1 2 3 4 5, these are 5 terms, which one is the middle term? तो आप बोलोगे मिडिल टर्म इज 3, बट इस मिडिल टर्म तक जाने के लिए आप क्या करते हो, 5 डिवाइडेड बाई 2, द रिजल्ट इज 2.5, तो आप इस 0.5 के नेक्स्ट वैल्यू पे जाते हो, क्लोजेस्ट वैल्यू, दैट इज 3, एंड यू से दिस इज योर करेक्ट आंसर. सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स आ रहे हैं, तो 7/2 करो, दिस इज 3.5, बट मैं बोल रहा हूँ 3.5 मत बोलना, क्या बोलना, नेक्स्ट वैल्यू विच इज 4. तो क्या 4 इसका मिडिल टर्म है? यस. 1 2 3 1 2 3 3 टर्म्स 4 इज द मिडिल टर्म. ये बात समझ में आ रही है? तो इफ वी हैव द नंबर ऑफ टर्म्स एज 351, विच वन इज द मिडिल टर्म? द मिडिल टर्म इज एक्चुअली 351/2. 351 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा खुद बताओ. 1, फिर 15 है तो 7, और फिर 11 है तो 5.5. अब ये तो नहीं बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे? 176. अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइंडिंग द 176 वैल्यू, 176 टर्म. कैसे निकालोगे? क्लोजेस्ट वैल्यू ले लो. अगर मैं मान लो लेता हूं 16, तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ टर्म्स 16 इंटू 17/2. 17 इंटू 8 से तो नहीं बन रहा है, बिकॉज ये 176 आ रहा है. 17 इंटू 10 भी कर दोगे तो 170 तक ही रह जाओगे, तो लीव दिस असाइड. अब नेक्स्ट कैलकुलेशन पे आ जाओ. ये 176 मतलब मैं 18 ले लेता हूं, चलो 18. ये क्या बनेगा? 18 इंटू 19/2. 19 इंटू 9, 19 इंटू 10 इज 190. 190 से 19 हटा दो, दिस इज 171. सो 171, द वैल्यू, द लेटर हैज टू बी 18. 18 पे कौन सा लेटर आता है? QRST. R is at the 171 terms, and 171st term is R and it has exhausted there. R के बाद क्या स्टार्ट होता है? तो S स्टार्ट होता है, और S यहाँ पे कितनी बारी आएगा? S यहाँ पे 19 टाइम्स आएगा, बट आपको जाना है 176 पे, तो 172, 173, 174, 175, 176 S ही आएगा. इस पे तो परेशान नहीं होना है ना. एन एस यहाँ पे 19 टाइम्स आएगा, आपको तो सिर्फ आगे जाना है 5 टर्म्स. 5 टर्म्स आगे जाओगे 100% एस ही आएगा इसका आंसर. तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर फॉर द मिडिल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज बेसिकली एस. अब इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है बाय रिवर्सिंग इट, कि z एक बारी है, y 2 बारी है, x 3 टाइम्स है, और a इज अकरिंग 26 टाइम्स. तो जरा सा दिमाग लगाना, सोचना कि क्या होगा. और उसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया है. z 2 बारी है, y 3 बारी है, x कितनी बारी आ रहा है? 4 बारी आ रहा है. तो अगर हर एक एलिमेंट 2 बारी आ रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, a कितनी बारी आएगा? यहाँ पे 27 टाइम्स आ जाएगा. बिकॉज आइडियली अगर आप रिवर्स करोगे तो z को एक बारी आना चाहिए, जैसे a एक बारी आता है, z 26 टाइम्स आना चाहिए, राइट? अगर आप रिवर्स कर रहे हो तो z एक बारी आएगा, a आएगा 26 टाइम्स. बट व्हाट इज द सीक्वेंस? z इज अकरिंग 2 टाइम्स. y जिसको 3 टाइम्स आना चाहिए, वो कितनी बारी आ रहा है? वो आ रहा है बेसिकली 2 टाइम्स. देखो 2 टाइम्स आना चाहिए, वो 3 टाइम्स आ रहा है. x को आना चाहिए 3 टाइम्स, वो 4 बारी आ रहा है, तो +1 हो रहा है बेसिकली. तो ये भी 26 ना आके 27 आएगा. और अगर मैं इसमें आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे द नंबर ऑफ टर्म्स हियर वुड बी सिंपली गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 गोइंग अप टू 27. ये 1 बस नहीं होगा इसमें, बट आपके पास जो फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट होता है. काउंटिंग कर लो पूरी, तो करो 27 इंटू 28/2 माइनस ऑफ 1 कर दो. ये बात समझ में आ रही क्यों करा? बिकॉज ये 1 यहाँ पे नहीं है, बट जब आप फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो ये 1 से स्टार्ट होता है, तो उस 1 को जो आपने एक्स्ट्रा कैलकुलेट करा उसे सिंप्लीफाई कर दो, यहां से सब्ट्रैक्ट कर देना. दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्म्स. अब आप इसमें से पहले मिडिल टर्म निकाल लो और एनालिसिस देखो कि कैसे आप उस मिडिल टर्म तक पहुंच सकते हो बाय यूजिंग दिस लॉजिक. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट. ट्राई करो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है. ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव डन, उससे ये डिफिकल्ट लेवल पे है. तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर इसको छोड़ भी रहो तो इस पे परेशान मत होना कि ये क्वेश्चन आपका छूट रहा है. क्लियर है? जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे बनने वाले थे.
एग्जाम में। ये मैं बोल सकता हूं कि अगर सबके लिए मैं देखूं फ्रॉम ऑल एवरीबॉडीज पर्सपेक्टिव, तो ये जरा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड गिवन द जंक्चर दैट वी आर एट, वी मे चूज टू लीव सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, बट देन अगेन ट्राई दिस। आप बताओ कि क्या सोल्यूशन इसका बन रहा है। सिमिलरली, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस? क्या आप इसमें कोई सीक्वेंस फाइंड आउट कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 4 5 6 7। तो अगर मैं 18 टर्म्स तक जा रहा हूं, तो जो पहला वाला टर्म है 1 2 3, ये तो 9 टाइम्स जाएगा, हाँ या ना? तो इसके 9 टर्म्स हो जाएंगे। एंड ऑल्टरनेटिवली व्हाट डू वी हैव, 3 4 5 6 ऐसे करते हुए ये कहां तक जाएगा? तो ये अल्टीमेटली आपके पास चले जाएगा 11। तो एक्स्ट्रा क्लियर है क्या? क्या नहीं जा रहा? तो आप बेसिकली 1 to 9 ऐड कर रहे हो, और आप 3 to 11 ऐड कर रहे हो। तो आप क्या करो, 1 to 9 ऐड करो, 1 to 11 ऐड कर लो, इसमें से आप 1 और 2 माइनस कर देना, और इन दो वैल्यूज को आप ऐड कर लो। ऐड करके रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है इनमें से। The process, the flowchart I've given you, it is you who need to solve this, because ultimately this particular topic requires a lot of solving from your end. आप जितनी बार इन चीजों पे काम करोगे, उतना आपके लिए आसान होते जाएंगी ये सारी चीजें। चलो, आई होप आप इसको कैलकुलेट करके इसका सोल्यूशन बताओगे। नेक्स्ट, इस बार देखो जरा चेंजेस है। क्या चेंजेस है? आप अगर इन एलिमेंट्स को देखो, तो ये ए बी सी डी इस तरीके से काम कर रहा है, बट एक एक्स्ट्रा 3 आ जा रहा है एवरी टाइम वी हैव अ 3 एक्स्ट्रा, एवरी टाइम वी हैव अ 3 एक्स्ट्रा। तो ऐसा कुछ भी एक कांस्टेंट हमेशा रिपीट होते चले जाए ना इस सीक्वेंस पे, तो आप जरा फॉर्मूला को चेंज कर। अगर एक कांस्टेंट हमेशा रिपीट हो रहा है, तो राइट 1n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3 3 या 2 2, फिर a, फिर 3 3 ए बी, फिर 3 3 ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, सो 2n प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। अगर तीन एलिमेंट रिपीट होंगे, तो आपके लिए कुछ ऐसा सीक्वेंस होगा। जैसे देखो, अगर मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, मैं बोलूंगा दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मुझे पता है 9 पे क्या एंड हो रहा है, सी एंड हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार देखूंगा सी के लिए वैल्यू होती है 3, तो मैं लिखूंगा 3 और इस फॉर्मूला पे पुट करूंगा, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 3 इंटू 4/2, दिस इज 3 प्लस 3 2 द 6 विच इज 9 टर्म्स। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर है कैसे इसको वर्कआउट कराना है? जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 11 12 13 14। मैं 14 पे दिख रहा है मुझे डी एंड हो रहा है, तो एन की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 4 इंटू 5/2, ये क्या बन गया 4 प्लस 10 विच इज 14। 14 पे क्या एंड हो रहा है, डी। क्लियर है? अब इसी तरीके से दो टर्म्स हमेशा रिपीट हो रहे हैं, तो आपने 2n ले लिया। अगर 3 टर्म्स होते तो आप 3n ले लेते और इसी सीक्वेंस को आगे लेके चले जाते। तो इस क्वेश्चन का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का आप रिस्पॉन्ड करो, देन ऑल्सो रिस्पॉन्ड फॉर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3, wherein we have taken two terms as constant, which is the term at the 100th position. And you know the formula for this is simple, 2n plus n into n plus 1/2. Use this and tell me the result for the letter at the 100th position. बताओ जरा क्या निकल के आ रहा है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, homework question number 2, homework question number 3 are your 3 homework questions with the concept of n into n plus 1/2. I hope ये सारे questions आपसे बन जाएंगे, not a problem here. But these are some interesting questions, और इस front पे question अब पूछा जा सकता है। Alright, you may join our Telegram channel for any course related inputs, and you know the description, the test series course is the only course that you can enroll right now for 2026. This foundation is for 2027 students only. All right, thank you everyone, take care, bye bye, happy learning.